બાયપાસ સર્જરી સહિતની અનેક સારવાર સરકારી યોજના હેઠળ કરી દર્દીઓ માટે સાચા અર્થમાં આશીર્વાદરૂપ બની રહી છે ભુજની હોસ્પિટલ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કચ્છમાં અમુક વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ તો નાની મોટી સર્જરી હોય કે કોઈ ગંભીર બીમારી હોય તો કચ્છના દર્દીઓને અથવા કચ્છના લોકોને એટલું જ ખ્યાલ હતું કે ભાઈ આપણે ગંભીર બીમારી છે અથવા સર્જરી કરવી છે એટલે કચ્છ બહાર જવું પડશે, રાજકોટ, અમદાવાદ કે એનાથી દૂર। પણ હવે અત્યારે ભુજની કચ્છની એટલી હોસ્પિટલો વિકસિત થઈ ગઈ છે અને ડૉક્ટરો નિષ્ણાત ડૉક્ટરોની ટીમ પણ છે। અને ખાસ વાત કરીએ તો એકોડ હોસ્પિટલમાં વર્ષોથી નિષ્ણાતો અહીંયા તબીબો સેવા બજાવી રહ્યા છે અને બાયપાસ જેવી ક્રિટિકલ સર્જરીઓ પણ એકોડમાં થાય છે। અત્યારે એક વડીલ છે જેમની 1 વર્ષ પહેલાં સર્જરી કરવામાં આવી હતી, બાયપાસ સર્જરી કરવામાં આવેલી, અને એ 1 વર્ષ બાદ પણ હજી પણ એ એકદમ પ્રોપરલી ચાલે છે, પોતાની રીતે બધું પોતાનું કામ કરે છે અને એક યુવાન કેમ પોતાનું બધું કરી શકતા હોય એ રીતે કરે છે। ત્યારે આપણે એ વડીલને આજે મળશું અને એમના પાસેથી જાણશું શું કહેવા માંગે છે। 90 વર્ષના બાપા પાસેથી આપણે જાણીએ। કાકા, શું નામ છે તમારું? દાનાભાઈ। શું નામ છે? દાનાભાઈ। દાનાભાઈ ક્યાંથી આવો છો તમે? નખત્રાણા તાલુકામાં મુરુ ગામ। તમને શું તકલીફ હતી દાદા? મને અહીંયા હાર્ટની તકલીફ હતી, હાર્ટની। હાર્ટની તકલીફ હતી, પછી સાહેબે ઓપરેશન કર્યું ત્યારે એના પછી તમને કેવું લાગ્યું? એ મને સારું લાગ્યું બહુ। કેટલા ટાઈમ પહેલા ઓપરેશન કર્યું છે? 12 મહિના થયા। 12 મહિના થઈ ગયા। અત્યારે તમે બધું બરોબર ચાલુ છું, બરોબર ખાવા પીવું છું, શાંતિ આરામ છે મને, બીજી કોઈ જાતની તકલીફ? કોઈ તકલીફ નથી। અને તમારી ઉંમર કેટલી છે દાદા? 92 વર્ષ। 92 વર્ષ છે? હા। અત્યારે એકદમ ફિટ ચાલો છો? ફિટ ચાલુ છું। શ્વાસ કેવું કઈ ચડતો? ના, શ્વાસ પહેલા ચડતો હતો, પછી અટાણે થવા ચાલુ છે એટલે શ્વાસ હવે ચડતો નથી। બીજું તમને અહીંયા જ્યારે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું ત્યારે હોસ્પિટલ તરફથી તમને કેવી સુવિધા મળી? મને સૂચે અહીંયા એકોડમાં। હા, એકોડમાં। હા, કેવી સુવિધા મળી? બહુ સુવિધા જોડી, મને બહુ મારી ચાકરી કરી અને ગણેશ સાહેબે મને ઊભો કર્યો। બરાબર છે। તો અહીંયાના સ્ટાફ અને ડૉક્ટર વિશે તમે શું કહેશો? એકોડ હોસ્પિટલ એકદમ મજા આવી અને પનડી હતો એટલે ગણેશ સાહેબે મારી ખૂબ ચાકરી કરી। બરાબર। તમારે આયુષ્યમાન કાર્ડ હેઠળ તમારી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી તો કેવી રીતે હતું? સરકારી યોજના હેઠળ? હા, સરકારી યોજના। તમને કોઈ પણ જાતનો રૂપિયો ભરવામાં કેટલો રૂપિયો લાગ્યા તમને ઓપરેશનમાં? ઓપરેશનના કાંઈ નહીં। એમની સાથે એમના એક રિલેટિવ પણ આવ્યા છે, એમની પાસેથી પણ વધારે વિગતો જાણીએ શું કહેવા માંગે છે। પહેલા તો ગણેશ સાહેબનો ખૂબ આભાર કે જેમણે 90 વર્ષના દાદા હતા એમનો સાહસ કરીને ઓપરેશન કર્યો ને ઘણો બધો એનું રિકવર કરીને આજ ચાલે છે અને એક સારો એક જીવન આપ્યો, એને ખૂબ ખૂબ આભાર। તો અત્યારે દાદાની દિનચર્યા શું હોય છે? આખો દિવસ સવારે કેટલા વાગે ઉઠે છે અને એને બીજી કોઈ તકલીફ કે બધું પોતાની રીતે જાતે કરી લેતા હોય? ના, પોતાની રીતે કરી લે એમ, ને ગામમાં આંટો લગાવી આવે, એમના મિત્રો હોય ને, મતલબ વડીલો હોય એની સાથે। જે તે વખતે તમે 12 મહિના પહેલા ઓપરેશન કરાવ્યું ત્યારે તમને કેટલો ખર્ચ લાગ્યો હતો અને કઈ યોજના હેઠળ તમે ઓપરેશન કરાવેલું છે? આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ કરવામાં આવ્યું। તમારું ઓપરેશન કાર્ય એકદમ તદ્દન ફ્રી હતું? હા, એ ફ્રી હતો। સરસ। દર્શક મિત્રો, આપણે કહીએ છીએ ને કે સાચા ડૉક્ટર, સાચા તબીબ એમને કહેવાય કે એના પાસે દર્દી રડતો આવે અને હસતો જાય। તો એવા જ એક ડૉક્ટર કે જે કચ્છમાં બાયપાસ સર્જરીમાં કહીએ તો રેકોર્ડ કર્યો છે, 110થી વધારે બાયપાસ સર્જરીઓ એકોડ હોસ્પિટલમાં રહીને કરી છે અને છેલ્લા 1 વર્ષમાં, અને એમાંથી કેટલી તો ક્રિટિકલ ઇમરજન્સીમાં આવેલા દર્દીઓની પણ બાયપાસ સર્જરી કરવામાં આવી છે। ત્યારે આપણે એવા જ એક હોનાર ડૉક્ટર સાથે મળીએ અને એમનું જાણીએ એમના વિશે વધુ डिटेल्स। सर जी, पहले तो आपका परिचय दीजिए और कहाँ से आपने डिग्री ली और भुज में कितने साल से? मैं डॉक्टर गणेश अमरनाया, कार्डियक सर्जन। तो मैं भुज में अप्रैल से हूँ और इधर कार्डियक सर्जरी शुरू करने का जो सेटअप है वो अप्रैल मई से मैंने स्टार्ट किया। तो ये एक हार्ट सर्जरी, जिधर हार्ट सर्जरी पहले से नहीं है तो उसको शुरू करना एक बहुत बड़ा काम रहता है, क्योंकि वो सेटअप शुरू से करना रहता है, इंस्ट्रूमेंट। कार्डियक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें पूरी टीम लगती है, तो एक आदमी अकेला नहीं कर पाता। तो इसमें जो परफ्यूशनिस्ट रहता है, तो असिस्टेंट्स रहते हैं, और ये टीम एफर्ट है। तो ये जो टीम एफर्ट के लिए जो टीम बिल्डिंग चाहिए, तो ये सब करके जून 21 तारीख को इधर मैंने प्रथम जो बाईपास ऑपरेशन किया था, ठीक है। तो वहाँ से लेकर के आज तक तो 110 से अधिक बाईपास ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है।
सर जी 110 ऑपरेशन किए, उसमें से बहुत सारे क्रिटिकल भी आए होंगे, ऐसे भी कुछ होंगे कि जो लंबी एज वाले हैं जिनको सरवाइव करना बहुत दिक्कत आता है। तो ऐसे कोई ऑपरेशन आए या फिर कोई क्रिटिकल जैसे कि किडनी का कोई बीमारी है, दूसरा कोई बीमारी है, ऐसे कोई केस कितने आए हैं? हाँ, इधर बहुत सारे क्रिटिकल जो केसेस किए हैं। उदाहरण के लिए एक पेशेंट जिनका हार्ट का पंपिंग केवल 20% था। जो नॉर्मल हार्ट का पंपिंग जो रहता है वो 65% रहता है, 60-65%, 60-65% रहता है। उनका केवल 20% 20% था। तो उनको ऑपरेशन जो है UN मेहता जैसे बड़ी इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया था, ये बोल के कि बहुत रिस्क है, ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। तो वो अंजार से है, तो उनका भी बाईपास किया था, वो भी सही हो गया। ऐसा ही बहुत सारे हाई रिस्क पेशेंट्स, उदाहरण के लिए जैसे दादाजी मेरे साथ बैठे हैं, उनके 90 साल के उम्र में हमने किया था। और ये इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है एक सर्जन को कि 1 साल के बाद टकाटक चलते हुए मेरे चेंबर के अंदर आए और आशीर्वाद दिया मुझे। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक सर्जन के लिए। सही बात है सर जी। आपको शुरू में ही मैंने एक बात कही कि भाई अच्छा डॉक्टर या सही डॉक्टर वही है जिसके पास पेशेंट आता है वो रोते हुए आता है या उसकी पीड़ा लेके आता है और जाए तब हंसते हुए जाए। तो आपकी ये बात सही बात है, आप ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं तो जो आपके जो दर्दी हैं, पेशेंट हैं, वो हंसते हुए जाते हैं। सर जी ये बात तो होगी, आप एकॉर्ड में आए, उसके बाद 110 सर्जरी की, तो उसमें एकॉर्ड हॉस्पिटल में शायद आयुष्मान कार्ड भी चलता है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है। Yes. उसके तहत भी बहुत सारे आपने ऑपरेशन किए होंगे, करीबन कितने किए होंगे? तो आयुष्मान मतलब मेजॉरिटी जो भी ऑपरेशन किए हैं आयुष्मान में ही किया है। मान लीजिए 100 के ऊपर है तो आयुष्मान कार्ड के अंदर किया, वो 100 के ऊपर हार्ट सर्जरी किया है। जैसे कि बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स जो कि नॉर्मली आप अहमदाबाद में भी जाएंगे, राजकोट में भी जाएंगे, ऐसा हाई रिस्क पेशेंट्स जनरली कार्ड के अंदर करने से हिचकिचाते हैं। जी सही, मैं सच बात बोल रहा हूँ। लेकिन अपने हॉस्पिटल में ऐसा हाई रिस्क, जैसे कि एक किडनी का 2 ऑपरेशन हमने किया है। अभी एक पेशेंट तो दूसरे दिन ही डिस्चार्ज हो गए। इमरजेंसी बाईपास ऑपरेशन किया हूँ, वो भी 2 दिन में डिस्चार्ज हुए। इमरजेंसी बाईपास ऑपरेशन में खतरा क्या रहता है, एंजियोग्राफी के दौरान खून पतला करने वाला गोली हाई डोज में दिया जाता है। तो ये बंद करके 4 दिन के बाद ही बाईपास ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग का जो खतरा है ऑपरेशन के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसा पेशेंट भी एंजियोग्राफी के 8 घंटे के अंदर हमने इमरजेंसी ऑपरेशन करके 2 दिन में डिस्चार्ज दिया है। तो ऐसे काफ़ी सारे इमरजेंसी ऑपरेशंस हमने किया है, जो सब कुछ कार्ड के अंदर ही किया है। सही बात है, कार्ड के अंदर की, यानी कि दर्दी को भुज में, यहाँ कच्छ में बाहर कहीं जाना नहीं है, कच्छ में ट्रीटमेंट भी मिलती है और मुफ्त में मिलती है। सही बात, सही बात। तो और इतना ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए जैसे दादाजी मेरे साथ बैठे हैं, मान लीजिए उनका इधर ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद अहमदाबाद में हो जाता है या राजकोट में हो जाता है, तो मान लीजिए ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग के लिए 3-4 बार जाना होता है, महीने जो दवाई लेने के लिए जाना होता है, फॉलो अप, जैसे कि मान लीजिए श्वास चढ़ रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, वो दिखाना जाना पड़ता है। तो मतलब अगर कोई कच्छ के अंदर ऑपरेशन बाहर करा लेता है, मान लीजिए राजकोट में या अहमदाबाद में, कम से कम 10-15 बार चक्कर काटना पड़ता है आना जाना। जो ये सारी चीज़ जो है पेशेंट को बच जाती है और उनका जो है केयर अच्छे से मिल पाता है। सही बात है। एकॉर्ड हॉस्पिटल में मैंने सुना है शायद एक फॉरेन से भी डॉक्टर आए हुए थे और कुछ बाईपास सर्जरी के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाए थे, वो क्या था सर? तो बेसिकली जो मैं ऑपरेशन करता हूँ, जो फुल चीरा मार के, जो ओपन, हाँ, पूरा ओपन करके जो मैं बाईपास ऑपरेशन करता हूँ, तो यही चीज़ जो है की होल से भी किया जा सकता है, जो साइड से हम करते हैं बिना ये हड्डी को खोले, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा इक्विपमेंट लगता है। तो जब मैं यूरोप में था, मैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली में था, तो उधर मैंने ये की होल का भी फेलोशिप किया है। तो मैंने क्या किया, अपने जो उधर गुरु है जिनसे मैंने सीखा, तो प्रोफेसर अल्फ्रेडो, तो जो विश्व भर में वो प्रसिद्ध है ये जो की होल सर्जरी के लिए, तो मैंने उनको ऐसे आमंत्रण दिया, तो उन्होंने खुशी खुशी उसको स्वीकार करके इधर आ गए और मार्च में हमने ऐसा 4 की होल सर्जरी इधर, वो भी कार्ड के अंदर ही किया है। क्या बात है।
तो मेरा यही सपना है कि इधर भुज में, कच्छ में ये की होल सर्जरी मैं लार्ज स्केल पे इधर शुरू करूँ जल्द से जल्द। जी। और आपको ऐसे कोई पेशेंट आए हैं जो गुजरात या अलग राज्य से आए हों और वहाँ पे डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल ने मना बोल दिया कि भाई इस प्रकार का ऑपरेशन आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, ऐसे कोई पेशेंट आए हैं या ऐसा कोई हो तो? हाँ, जो बाहर से आए हुए हैं, एक पेशेंट कलकत्ता से आए थे, जो बीएसएफ में थे, तो उनको इधर पोस्टिंग पे थे भुज में, तो उनको ऑप्शन था या तो कलकत्ता में कराए या भुज में कराए, लेकिन उधर वो इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया कि ऑपरेशन सही हो जाएगा, तो इधर हमने उनका किया था, अभी सही हो गया और अभी कलकत्ता में उनकी पोस्टिंग चल रही है, बीएसएफ जवान जो 58 ईयर्स के थे। और दूसरा एक बिहार से एक पेशेंट था, वो इधर गांधीधाम में काम कर रहे थे, तो उनका भी ऐसा बाईपास किया था। और अभी हाल ही में एक मुंबई वकार्ड में एक सीटी एंजियोग्राफी, जो नॉर्मल एंजियोग्राफी जो वायर से करते वो वाली नहीं, जो बाहर से एक्सरे जैसा सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, उसमें नस के मेजर ब्लॉकेजेस निकले थे, तो वो भी इधर आके अभी हाल ही में बाईपास ऑपरेशन कराए। तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑपरेशन के लिए अब कच्छ के पेशेंट को कच्छ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कच्छ में ही सारा ट्रीटमेंट मिल सकता है। सही बात। माँ मोटर ड्राइविंग, सेफ एंड श्योर ड्राइविंग। ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે। અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન, આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે।